Yes, students, in previous lecture we studied about different rules of binomial nomenclature and brief about taxonomy. So taxonomy, that means we have to classify the organism into different group. Now we have to discuss taxonomic categories. Now see, taxonomic categories, like if we want to classify the organism, then it's not a single step process. That means it's a multi-step process, and after that we can classify each and every organism. So classification is not a single step process, and it involves a hierarchy of steps. That means many steps are there and they form a hierarchy, which each step represent a category or a rank. Like that means there are different steps, and each step we can say is the category or a rank. That means taxonomic classification is a multi-step process, and each step is known as a category or rank. Now we can say that category is overall part of taxonomic arrangement and is called taxonomic category. यानी कि कोई एक कैटेगरी है, वो एक पार्ट है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर क्या बना देगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. नाउ all categories together constitute the taxonomic hierarchy. That means there are different category or rank, or we can say group. एक लो भी group है, there are different group and they form all together form a taxonomic hierarchy. Is clear? इसको डिटेल में समझेंगे, आगे देखो. Now each category referred as unit of classification. Now that means each category, or we can say each rank, is referred as unit of classification, and that term as taxon. That term as a taxon. वापिस देखो, taxonomic category, that means classification is a मल्टी स्टेप प्रोसेस है, हर एक स्टेप कर लो, दैट इज नोन एज कैटेगरी, और उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलके क्या फॉर्म करती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. अब हमारे पास जो एक कैटेगरी है, दैट रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन, दैट रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन. जैसे हमने कल भी देखा था कि एक ग्रुप इज नोन एज ए टैक्सॉन. दैट मीन्स ए काइंड ऑफ और सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन. जैसे मैं ये कहूँ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट इज ए टैक्सॉन. मैं ये कहूँ कि एनिमल, तो एनिमल इटसेल्फ इज ए टैक्सॉन. मैं ये कहूँ प्लांट्स, तो प्लांट्स इटसेल्फ ए टैक्सॉन. अगर मैं ऐसे कहूँ कि वी कैन से फैमिली को ले लो, जैसे पी फैमिली या मस्टर्ड, मैं पी फैमिली कहूँ जैसे, तो पल्सिस की बात करूँ जैसे मैं, तो पल्सिस इज ए टैक्सॉन. ओके, अब देखो, देयर आर टू वर्ड, वन इज कैटेगरी एंड सेकंड इज ए टैक्सॉन. सो हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, अब हम उसको स्टडी करेंगे. पहले थोड़ा सा इसको समझो कि ये है क्या. Now see, suppose the world is equal to all organisms, okay, and here we are human, and we can say your home. So how we have to classify home from this world, or how we have to classify human being from this organism. जैसे we all are human being, after that we are mammals, after that we are chordates, after that we are animals, and after that we are organism. But we have to classify in different group, कि मैक्सिमम ऐसे कैरेक्टर देखें जो ह्यूमन से मिलते जुलते हो, और हम उसको क्या करते हैं, कि ग्रुप में इकट्ठा करते हैं. नाउ सी, सपोज दिस वर्ल्ड is equal to all the organism, then in world there are different continent, 1 2 3 4 5 continents are there, and one continent there is that is known as Asia. Okay, so inside Asia there are many countries, and one country there is known as India. In India there are many states, and out of one state is Haryana. हरियाणा इज ए स्टेट, एंड देयर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा. लाइक हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार है, तो हमारे क्या डिस्ट्रिक्ट हो गया, हिसार. एंड हिसार इटसेल्फ ए, वी कैन से ए बिग सिटी, देन मेनी एरियाज आर देयर इन हिसार, और वी कैन से हियर सपोज करो यू आर लिविंग इन सेक्टर 14, तो यहाँ पर आ गया आपका सेक्टर
14 and in sector 14 your home is there. Okay, अब दूसरा तरीका ये देखो कि सपोज आई हैव टू सेंड ए लेटर एट योर होम, एट योर होम इज इन सेक्टर 14. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर, आपका नाम, देन हाउस नंबर, सेक्टर, देन हियर इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द नेम ऑफ स्टेट, देन नेम ऑफ कंट्री, देन कंटिनेंट एंड वर्ल्ड. सपोज करो मैं यहाँ से कहीं से भेज रहा हूँ किसी दूसरी जगह से किसी और से, तो दिस इज ए फॉर्म ऑफ हायरार्की. तो देयर आर डिफरेंट steps and these steps are known as a category. These steps are known as a category or we can say rank. Okay, now see this way here, this is the India. तो एक रैंक क्या हुई, वर्ल्ड, उसमें क्या हुआ एशिया, उसमें क्या हुआ इंडिया, उसमें क्या हुआ हरियाणा, हिसार, सेक्टर 14 एंड होम. इसी तरह से हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देख लेंगे. Now we follow a systematic hierarchy. What are these different ranks? Now see, all organisms are divided into different kingdom. एक फॉर्मूला लिखते हैं, keep pot clean or family get sick. Keep pot clean or family get sick. तो keep से यहाँ से आया kingdom, then there are different kingdom and in one kingdom there are different phylum and in one phylum there are different class. In one class there are different order. In different order they are, we can say, different family. In different family there are different genus, G को कैपिटल रख लो याद रहेगा. And in different genus there are different species. तो ये हमारी हायरार्की होगी किसको, क्लासिफिकेशन के लिए. तो ये अलग अलग हायरार्की में ये हमारे क्या है, दिस इज द कैटेगरी, दिस इज द कैटेगरी, दिस इज द कैटेगरी और उनको हम क्या कह सकते हैं, रैंक कह सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हमने किस में डिवाइड किया, इनटू डिफरेंट किंगडम. देयर आर, वी कैन से 5 मेजर किंगडम. जैसे प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, उसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड करते हैं. देन इन डिफरेंट किंगडम देयर आर फाइलम. Then in one phylum there are different class. In different class there are different order. In different order there are different family. In different family there are one family, there are different genus and one genus may be more than one species. ठीक है, अब ह्यूमन को लो यहाँ से. Now see, now we have to classify human being scientifically or biologically. We know that the name of species of human is sapiens and name of genus is Homo. The family is Hominidae and order is Primata. Class is Mammalia. Phylum is Chordata and kingdom is Animalia. ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ, अब मैं ऐसे कहूँ कि वी आर सेपियंस, तो आई एम राइट. अगर मैं ऐसे कहूँ वी आर होमो, देन आई एम राइट. अगर मैं ऐसे कहूँ वी आर द मेंबर ऑफ होमिनिडी फैमिली, देन आई एम राइट. अगर मैं ऐसा कहूँ कि आई एम मेंबर ऑफ प्राइमेट्स, तो मैं ठीक हूँ. अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं मैमल हूँ, तो आई एम राइट. अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं कोडेट हूँ, तो आई एम राइट. अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एनिमल हूँ, तो आई एम राइट. अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, देन आई एम राइट. सो दीज आर द डिफरेंट वी कैन से कैटेगरी और रैंक. अब देखो, एक हमने वर्ड यूज किया था टैक्सॉन और टैक्सॉन. नाउ
These are the different we can say categories. Now what are these categories represent? Like in this class there is a one class known as Mammalia, and inside Mammalia there is a group of we can say similar kind of animals. तो उस जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है उसको मैं बोलूंगा टैक्सॉन. तो दैट मीन दिस मैमेलिया दिस रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन, और जो क्लास है दिस वर्ड क्लास है इसको मैं बोलूंगा कैटेगरी और रैंक. ठीक है, तो ये तो सिर्फ हायरार्की के पार्ट है, और टैक्सॉन मीन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्सॉन एंड ए रैंक और वी कैन से कैटेगरी. अब आई बात समझ में कि हम कैसे करते हैं. तो फर्स्ट हाउ टू क्लासिफाई. ऑर्गेनिज्म को पहले क्लासिफाई करो प्लांट्स और एनिमल में, फिर एनिमल को वो कोऑर्डिनेट है या नहीं है, फिर कोऑर्डिनेट में वो मेंबर है या नहीं है, फिर वो प्राइमेट है या नहीं है, फिर वो होमिनिडी फैमिली में है या नहीं है, फिर उसका जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है. सो दिस इज द वी कैन से डिफरेंट वेज ऑफ ए क्लासिफिकेशन. सो दीज आर द डिफरेंट रैंक. तो कैसा ऑर्डर चलेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस one example of plant and one example of animal, or we can say animal kingdom, except this Homo sapiens, to we can say discuss these different categories. Okay, I hope you got this. So keep this sentence in your mind. Keep pot clean or family get sick. So keep से kingdom, phylum, class, order, family, genus और species. Okay.